पार्टी संघर्ष करो प्रियंका गांधी सिंगरेणी नल्ल बंगारम जय जय हे तेलंगाण जननी जय केतनम On behalf of Telangana Pradesh Congress Committee, we are heartfully welcoming you, madam. On behalf of Sang Banjani. On behalf of Telangana Pradesh Congress Committee, we are heartfully welcoming you, madam. Our Honorable AICC General Secretary, respected Priyanka Gandhi ji. Now, పోలీసు అధికారులందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. దయచేసి సంబంధిత పోలీసు అధికారులు రోడ్ల మీద వేల మంది వేచి ఉన్నారు. ట్రాఫిక్ ను కంట్రోల్ చేసి ఫ్రీ ప్యాసేజ్ ఇవ్వవలసిందిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. దయచేసి పిసిసి అధ్యక్షులు, సిఎల్పి నాయకులు, ఇన్ఛార్జ్ గారు, గౌరవ ఎంపీ గారు ప్రియాంక గాంధీ గారికి గౌరవ స్వాగతం పలుకుతారు. జీవన్ రెడ్డి గారు కౌన్సిల్లో చైర్మన్ జీవన్ రెడ్డి గారు, జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు చెల్లా నరసింహారెడ్డి గారు, రంగారెడ్డి జిల్లాకు సంబంధించిన మాజీ మంత్రివర్యులు పెద్దలు ప్రసాద్ కుమార్ గారు, ఫార్మర్ మినిస్టర్ రంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్. ఇప్పుడు జిల్లా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు చెల్లా నరసింహారెడ్డి గారిని స్వాగతోపన్యాసం ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. నరసింహారెడ్డి గారు. ఆ తరంలో ఇందిరమ్మ, రాజీవ్ గాంధీ ప్రాణాలు దేశం కోసం అర్పిస్తే గారి చేతుల మీదుగా ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు ఇన్ఛార్జ్ మాణిక్రావు ఠాకరే గారు, సిఎల్పి నాయకులు బట్టి విక్రమార్క గారు, జీవన్ రెడ్డి గారు, ఉత్తమ్ రెడ్డి గారు దయచేసి మేడం ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ తెలంగాణ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ వీఆర్ రిక్వెస్టింగ్ యూ టు ప్రెజెంట్ చెక్స్ హూ ఆర్ victims of Congress party members, and we are offering a insurance 2 lakhs of insurance from Telangana Pradesh Congress Committee. Madam, we are requesting you to present the checks, madam, in the beside stage, please, madam. It is Pawan Malladi, sound better koncham. It is my absolute privilege to welcome on behalf of Telangana Congress family our young, beloved and dynamic leader Srimati Priyanka Gandhi Garu to Telangana and its capital city of Hyderabad to Yuva Sangarshana Sabha, and also to announce Hyderabad declaration for youth. Madam, seeing you is giving us new energies. Your self contribution for the cause of the party and the untiring drive to raise the issues of common man and fight for them are an inspiration to all of us. Madam, this meeting is also special to TPCC due to the reason that this is your first public meeting after assuming the charge of General Secretary and also after formation of Telangana state. The people of Telangana have been waiting for this meeting to see you and listen to you on several issues which are of serious concern to the state of Telangana and its people, especially employees and youth and women. No one from the present younger generations have seen our great leader Srimati Indira Gandhi Garu in person, but madam, through you we are able to feel her presence both in body and strength of character. Madam, in you we sense a leader for generations to come. Madam, last year Congress party leaders successfully enrolled 43 lakh people during the membership enrollment program. This is ప్రమాదవశాత్తు మరణించిన వారికి ఒక్కొక్కరికి 2 లక్షల రూపాయల చొప్పున ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ తరఫున శ్రీమతి ప్రియాంక గాంధీ గారి చేతుల మీదుగా బాధిత కుటుంబాలకు ట్రెజరర్ గా ఉన్న సుదర్శన్ రెడ్డి గారు కూడా పాలు పంచుకోవడం జరిగింది. 2 లక్షల రూపాయల చెక్ ఇచ్చి వాళ్ళ పెద్ద మనసును చాటుకున్నారు. వారికి ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ తరఫున హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం.
On behalf of Pradesh Congress Committee, we are thankful to you, madam, for participating in important program of giving checks to the victims of Telangana Congress families, madam. Now I request CLP నాయకులు గౌరవనీయులు బట్టి విక్రమార్క గారిని తమ అమూల్యమైన సందేశాన్ని ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. బట్టి విక్రమార్క మల్లు సిఎల్పి నాయకులు వారి సుదీర్ఘమైనటువంటి పాదయాత్రను ముగించుకొని ఈరోజు విరామంతో ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. వాళ్ళకు ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ తరఫున హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ వారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. ఇప్పుడు మాణిక్రావు ఠాకరే గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. మన రాష్ట్ర ఇన్ఛార్జు, అపారమైనటువంటి అనుభవం ఉండి 8 సంవత్సరాలు పిసిసి అధ్యక్షులుగా, అపారమైనటువంటి రాష్ట్ర మంత్రివర్గులుగా పనిచేసినటువంటి సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు మాణిక్రావు ఠాకరే గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का नेता, हमारा देश का युवा नेतृत्व प्रियंका जी गांधी, हमारे पीसीसी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी जी, सीएलपी लीडर सम्मानीय भट्टी जी, उपस्थित हमारे भाई एमपी उत्तम कुमार जी, सम्मानीय जेना रेड्डी जी, जीवन रेड्डी जी, हमारे मधु एसटी जी, हनुमंत राव जी, पोन्ना लक्ष्मण जी, अजहर भाई, हमारे शब्बीर भाई, सभी मंच पर बैठे हुए तेलंगाना के नेतागण और उपस्थित बड़ी तादाद पे यहाँ पर मेरे युवा साथी, हमारे सभी स्टूडेंट, कांग्रेस पार्टी के हमारे अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल एनएसवाई के सभी अध्यक्ष, सभी कांग्रेस जन और उपस्थित मेरे भाइयों, सबसे पहले मैं प्रियंका जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि पूरे देश में जिस तरीके से एक नेतृत्व करके उभर के आई है, हर जगह पे हम जाते हैं तो प्रियंका जी का नाम हम सुनते हैं कि उनकी आवाज सुनने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए सब जनता बड़ी तादाद पे आती है। मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूं, यहाँ पे प्रियंका जी का स्वागत करता हूं। ప్రాణాలు అర్పించిన యువతి యువకులను ఉద్యమ వీరులుగా గుర్తించి వారి కుటుంబంలో ఒకరికి ఉద్యోగం ఇచ్చి వారి తల్లి లేదా తండ్రి లేదా భార్య వాళ్ళకి 25,000 రూపాయల గౌరవ పెన్షన్ ఇచ్చి తెలంగాణ ఉద్యమకారులను స్వాతంత్ర సమర యోధులుగా గుర్తించే బాధ్యత ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకుంటుంది. అదేవిధంగా 14 సంవత్సరాల తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఉద్యమకారుల మీద పెట్టిన కేసులను ఎత్తివేయడమే కాకుండా వాళ్ళందరినీ గుర్తించి జూన్ 2 తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు పర్వదినాన ఉద్యమకారుల గుర్తింపు కార్డు ఉద్యమకారులకు ఇచ్చి భవిష్యత్ తరాలకు తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనలో వీళ్ళు సమితలుగా ఉన్నారు. ఆనాటి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కేసులను ఎదుర్కొన్నారని చెప్పి వాళ్లకు సముచితమైన గౌరవం గుర్తింపునిచ్చే బాధ్యత కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకుంటుంది. అదేవిధంగా సెకండ్ డిక్లరేషన్ ఇది అత్యంత కీలకమైనది. తెలంగాణ ఉద్యమం 60 ఏళ్ళు కొట్లాడిందే మన ఉద్యోగాలు మనకు కావాలి అని. ఆ నేపథ్యంలోనే
తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డది. కానీ మన ఆకాంక్షలు నెరవేరలేదు. చంద్రశేఖర్ రావు నట్టేట ముంచి మనల్ని నమ్మించి మోసం చేసిండు. అందుకే ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ నూతన సంవత్సరం, నూతన ప్రభుత్వం 2024లో ఏర్పాటు చేస్తుంది. ఆ కొత్త ప్రభుత్వంలో మొదటి ఏడాదిలోనే 2 లక్షల ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయడం జరుగుతుంది. మొదటి సంవత్సరం 2 లక్షల ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేసే బాధ్యత రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకుంటుంది మిత్రులారా. అదే విధంగా మొదటి ఏడాదిలోనే ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ బ్యాక్లాగ్ పోస్టులన్నిటిని కూడా భర్తీ చేసే బాధ్యత కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకుంటుంది. అదే విధంగా ఉద్యోగ ఖాళీల కోసం క్యాలెండర్ను విడుదల చేసి ప్రతి ఏడాది జూన్ 2 నాటికి ప్రభుత్వంలో ఉన్న ఖాళీలను అన్నిటిని సేకరించి నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చి సెప్టెంబర్ 17 నాడు అన్ని ఖాళీల నియామక పత్రాలు లబ్ధిదారులకు ఇచ్చి శాశ్వతంగా క్రమం తప్పకుండా ప్రభుత్వంలో ఉన్న ఖాళీలను భర్తీ చేసే బాధ్యత కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకుంటుంది. అదే విధంగా ఉద్యోగాల కోసం చేసి ఉద్యోగ ఉపాధి దొరకక నిరాశ చెందుతున్న నిరుద్యోగ యువకులకు ప్రతి నెల 4,000 రూపాయల 4,000 రూపాయల నిరుద్యోగ వృత్తిని ఇచ్చి నిరుద్యోగ యువకులను కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆదుకుంటుంది. అదే విధంగా తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ మీరు చూసిండ్రు, రాజకీయ పునరావాస కేంద్రంగా మారింది. దద్దమ్మలను, చవటలను తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లో సభ్యులుగా, చైర్మన్లుగా చంద్రశేఖర్ రావు నియమించాడు. అందుకే తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ని బలోపేతం చేసి యూపీఎస్సీ తరహాలో నియామకాలు చేపట్టి పారదర్శకంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగ నియామకాల ప్రక్రియను కాంగ్రెస్ పార్టీ చేపడుతుంది. థర్డ్ డిక్లరేషన్ కాంగ్రెస్ హయాంలో నిరుద్యోగ రహిత రాష్ట్రంగా తెలంగాణను తీర్చిదిద్దడానికి సెంట్రలైజ్డ్ ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ విధానాన్ని ఏర్పాటు చేస్తాం. అదే విధంగా ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం 7 జోన్లుగా విభజించబడ్డది. 7 జోన్లలో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్స్చేంజ్లను ఏర్పాటు చేసి వాటితో పాటు ప్రతి జిల్లాలో కోరుతా ఉన్నాం. जय बोलो तेलंगाना। बहनों और भाइयों, आप इतनी बड़ी तादाद में आज यहाँ आए हैं, गर्मी में मेरा इंतजार किया है और मेरे आने के बाद मेरा स्वागत इतने प्रेम से आपने किया है, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। श्री मानिकराव ठाकरे जी, श्री रेवंत रेड्डी जी, श्री भट्टी विक्रमारका जी, श्री उत्तम रेड्डी जी, श्री जीवन रेड्डी जी, श्री जन रेड्डी जी, श्री हनुमंतराव जी, श्री पोनल्ला लक्ष्मैया जी, मोहम्मद अजहरुद्दीन जी, श्री बलराम नायक जी, श्रीमती रेणुका चौधरी, श्री अली शब्बीर जी, सी तक्का जी, श्री मधु गौड जी, श्री जग्गा रेड्डी जी, श्री के राजू जी, श्री नरसिम्हा रेड्डी जी, वामसी जी, संपत जी, नदीम जावेद जी और रोहित चौधरी जी,
यहाँ पर उपस्थित मंच पे सारे कांग्रेस पार्टी के नेतागण, पदाधिकारी और यहाँ पर जितने भी उपस्थित कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। आप तेलंगाना को मां बोलते हैं। ये एक जमीन का टुकड़ा नहीं है आपके लिए, ना एक नक्शे पे बनाई हुई लकीर है। ये आपके लिए वो धरती है जिसे आप मां समान मानते हैं, जिसके लिए आपके दिल में वो श्रद्धा है, वो प्रेम है और वो निष्ठा है जो एक बेटे या एक बेटी की अपने मां के प्रति होती है। शायद आप हट जाएं तो देख पाएंगे। इस धरती के लिए दिख रही हूं। इस धरती के लिए सैकड़ों लोगों ने कुर्बानी दी। वीर श्रीकांताचार्य और सैकड़ों अमर वीरों ने तेलंगाना के लिए एक सपना देखा था और उस सपने के लिए उन्होंने अपना जीवन दिया। मित्रुलारा कोशिश करूंगी। तेलंगाना विद्यार्थी అమరవీరులు ఏ ఆకాంక్షల కోసం ఆత్మ బలిదానాలు చేసుకున్నారు। ठीक बोला? उनकी क्या इच्छा थी, उनकी क्या आशा थी? उनकी इच्छा थी, उनकी लड़ाई थी कि यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार बने, कि आने वाली पीढ़ियों को अपना पूरा हक मिले, उनके साथ ज्यादती न हो। किसानों के लिए उन्होंने ये सपना देखा था कि उनको पानी मिले, फसलों का सही दाम मिले, कर्ज का बोझ न उठाना पड़े। अपनी बहनों के लिए ये सपना देखा था कि पूरी तरह से उन्हें भी अपना हक मिले और सारी सुविधाएं मिले। वारंगल, रेड्डी, नलगोंडा, करीमनगर, महबूबनगर जैसे शहर भी हैदराबाद की तरह विकसित हो, उनका नाम भी पूरी देश दुनिया में मशहूर हो। ये शहीद जिन्होंने तेलंगाना के लिए अपना जीवन दिया, ये चाहते थे कि बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा फूले जी, कोमरम भीम जी का जो सपना है वो साकार हो, सबको सामाजिक न्याय मिले, सबको समान हक मिले। पूरे तेलंगाना का यही नारा था, नीरू निद्दलू नियमकालू। पानी, फंड्स और रोजगार, यही आप सबका नारा था। इसके लिए सैकड़ों कुर्बानियां दी गई। किसान, युवा, महिलाएं, दलित, आदिवासी सब आंदोलन के नायक थे। यहाँ की बेटियां इस आंदोलन के नायक थे। ऐसा कोई एक नेता नहीं था जिसने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। ये आपका आंदोलन था, तेलंगाना की धरती के बेटे और बेटियों का आंदोलन था। उन्होंने कुर्बानियां दी, उन्होंने आंदोलन किया और इन कुर्बानियों की वजह से आज हम तेलंगाना प्रदेश में खड़े हैं। आप तो जानते ही होंगे, मेरे परिवार ने भी कई कुर्बानियां दी इस देश के लिए। इंदिरम्मा भी शहीद हुई। मिट्टी के लिए कुर्बान होने का मतलब क्या होता है, ये मैं जानती हूं, मेरा परिवार जानता है और समझता है। जब हम सब कहते हैं कि किसी शहीद की कुर्बानी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए,
तो इसका मतलब क्या होता है मेरे परिवार के सदस्य जानते हैं। और यहाँ तेलंगाना में एक एक पुरुष, एक एक महिला जानती है, क्योंकि आप में से हजारों लोगों ने यही कुर्बानी दी अपने प्रदेश के लिए और अपने देश के लिए। कुर्बानियां एक विचार के लिए दी जाती हैं। दिल में जो इंसान जिस चीज में विश्वास करता है, जिसके लिए लड़ता है, उसके लिए कुर्बानी दी जाती है। जब सैकड़ों युवाओं ने तेलंगाना के लिए कुर्बानी दी, तो मेरी मां सोनिया जी ने गहराई से ये समझा कि यहाँ की आवाज क्या है, यहाँ की जनता क्या चाहती है। और मुझे याद है कि एक सरल निर्णय नहीं था, एक तरह से एक मुश्किल निर्णय था, क्योंकि अगर सोनिया जी उस समय सत्ता के बारे में सोचती या अपनी पार्टी के लिए राजनीति के बारे में सोचती तो शायद ये निर्णय नहीं ले पाती। लेकिन सोनिया जी ने आपके बारे में सोचा, आपकी इच्छा के बारे में सोचा, जो आंदोलन आपने बनाया था उसके बारे में सोचा, जो आप चाहते थे उसको सुना, समझा और तभी ये निर्णय लिया गया। तेलंगाना जब बना तो ये स्पष्ट था कि ये प्रदेश अपना रास्ता अपने आप तय करेगा। सबकी यही इच्छा थी और आशा थी कि एक मजबूत प्रदेश बनेगा, कि जितनी आशाएं आंदोलन में व्यक्त की गई थी, जितने बलिदान दिए गए थे, उनका आदर होता। और सब चाहते थे कि चाहे हमारी सरकार बने, चाहे किसी और की सरकार बने, लेकिन तेलंगाना एक नया प्रदेश बना है, अपने आंदोलन से उभरा है। इसमें सब किसान, दलित, आदिवासी, जनता, युवा सब शामिल हुए। तो हम सब चाहते थे कि कैसी भी सरकार आए, चाहे हमारी सरकार भी ना हो, लेकिन तेलंगाना के लिए कुछ अच्छा करके जाएगी और कुछ बनाएगी और आपको विकसित बनाने के लिए दिन रात काम करेगी। लेकिन अफसोस की बात है कि जो सपना और जो आपकी इच्छा थी नीरू निदलू नियमकालू की, वो अभी तक पूरी नहीं हुई। आज परिस्थितियां ये है कि सत्ताधारी नेताओं को ही पानी मिल रहा है। सारा फंड सत्ताधारी नेताओं को ही मिल रहा है और सारी जो नौकरियां हैं यहाँ के युवाओं को मिलने के बजाय उनके करीबियों और उनके दोस्तों को मिलती हैं। ये आपका सपना नहीं था। बीआरएस सरकार यहाँ एक शासन चला रही है जिसमें आपके सपने सरकार नहीं हो पा रहे हैं, साकार नहीं हो पा रहे हैं। उनको शायद ये लगता है कि ये प्रदेश उनकी जागीर है और वे इसके नए जागीरदार हैं। लेकिन इसके लिए आप नहीं लड़े, इसके लिए आपके बहनों, आपकी भाइयों ने बलिदान नहीं दिया, इसके लिए आपका आंदोलन नहीं चला। आपका आंदोलन इसलिए चला कि आपको अपना पूरा हक मिले, कि जितने रोजगार बन रहे हैं वो यहाँ के युवाओं और युवतियों को मिले। और इसीलिए जब बीआरएस की सरकार ने कहा कि वो आपको कर्ज मुक्त करना चाहती है और ये वादा दिया, 2.5 लाख किसानों पर आज भी 1.5 लाख रुपए का कर्ज है। 2.5 लाख किसानों पर, एक एक किसान पर कर्ज है और आपको अभी तक कर्ज मुक्त नहीं किया है, अपना वादा पूरा नहीं किया।
8,000 किसानों ने 2014 से लेकर आज तक आत्महत्या कर डाली। रोजाना लगभग 3 किसान आत्महत्या करते हैं। केसीआर जी ने कहा था कि हर घर में एक नौकरी देंगे। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूं, आपके घरों में नौकरी मिली कि नहीं? नहीं मिली। नहीं। यहाँ के हाल में यहाँ के 40 लाख युवा बेरोजगार हैं। 2018 में इन्होंने कहा था कि हर महीने 3,000 रुपए बेरोजगारी का भत्ता मिलेगा। आपको मिल रहा है ये भत्ता? अगर भत्ता देते तो एक युवा को आज 1.5 लाख से ज्यादा रुपए मिलते। क्या मिल रहे हैं आपको? क्या मिले आपको? 2 लाख नौकरियों के पद खाली पड़े हैं, सरकार में भरे नहीं गए हैं, आपको नहीं दिए गए। भर्तियों का खाल देखिए, टीपीएससी का पेपर लीक हो गया, कोई एक्शन लिया इन्होंने? किसी पे कार्रवाई हुई? जिन बच्चों ने मेहनत से पढ़ाई की थी, जिनके माता पिता ने अपनी मेहनत और ईमानदारी की कमाई से उनकी फीस दी थी ट्यूशन के लिए, उनकी कोई मदद, कोई सहायता हुई? तो पिछले 9 सालों में 12 स्टेट यूनिवर्सिटीज में एक भी भर्ती नहीं हुई है। सोचिए आप, उस्मानिया जैसी तमाम यूनिवर्सिटीज टीचर्स और फंड की कमी से जुड़ रही हैं। एक भी सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई गई। प्राइवेट यूनिवर्सिटी जरूर बनाई है जिसमें आपको लूटा जाता है और फीस इतनी ज्यादा होती है कि आधी जनता तो उसको दे नहीं पाती। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज के लिए 15 लाख विद्यार्थियों के 4,000 करोड़ दबाकर बैठी है सरकार और कुछ नहीं किया है। भर्तियां नहीं हो रही हैं अध्यापकों की, कोई नौकरियां नहीं मिल रही हैं युवाओं की। तो ये परिस्थितियां हैं आज आपकी। आपको बहुत चीजें कही गई थी, बहुत वादे किए गए थे, लेकिन वो वादे पूरे नहीं किए। आप शायद जानते नहीं होंगे कि बच्चों के स्कूलों में बच्चों के स्कूल भी कम हो गए हैं। कम बच्चे एनरोल हो रहे हैं पाठशालाओं में और शिक्षा का ही बजट कम कर दिया है। हाँ? आप सोचिए एक व्यक्ति पर कहीं ना कहीं से कर्ज है। हर व्यक्ति के ऊपर हजारों रुपए का किसी न किसी तरह से कर्ज है। आपका पैसा सारा कहां गया? आपकी संपत्ति कहां गई? जो बड़े बड़े सपने आपको दिखाए थे, जो आपकी आशाएं थी, जिसके लिए आपने आंदोलन किया, अपना एक नया प्रदेश बनाया, उन आशाओं का क्या हुआ? आपको एक ऐसी सरकार मिली जिसने आपके सपने तोड़े। तो अब आपको तय करना पड़ेगा बहनों और भाइयों, कुछ महीनों में यहां पे भी चुनाव आएगा। मैं हर रोज पिछले 2 हफ्तों से कर्नाटका में प्रचार के लिए जा रही हूं। आज आखिरी दिन है। वहां खूब भाषण देके आई हूं और क्या कहती हूं मैं वहां, आप भी सुन लीजिए कि देखिए, ये प्रदेश, ये देश आपका है और खास तौर से तेलंगाना, जहां पे आपने युवाओं ने बलिदान दिया इस प्रदेश को बनाने के लिए, ये आपका है। इसकी सुरक्षा, इसको संभालना, इसके भविष्य को मजबूत बनाना आपका भी कर्तव्य है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। जब आप एक सरकार को चुनते हैं तो अगर आप जागरूक नहीं बनते, अगर आप ये नहीं देखते कि इस सरकार ने हमारे लिए क्या किया, कैसी स्कीम्स बनाई, हमारी आज परिस्थितियां कैसी हैं, पहले से सुधरी हैं,
कि पहले से ज्यादा मुश्किल परिस्थितियों में हैं हम, और उस जागरूकता के साथ आप नई सरकार नहीं चुनेंगे, तब नुकसान किसी नेता का नहीं होगा बहनों और भाइयों, नुकसान आपका होगा, नुकसान मेरी बहनों आपका होगा, आपके बच्चों के भविष्य का होगा। तो ये चीजें बहुत गहराई से आपको समझनी चाहिए। आपने अपना पूरा आंदोलन देखा। आज आप यहाँ पे जब मुझे कहते हैं कि मैं इंदिरा अम्मा जैसी एक नई इंदिरा अम्मा हूं, ये हल्की बात नहीं है बहनों और भाइयों, ये हल्की बात नहीं है। जब आप ऐसे कहते हैं तो मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है, क्योंकि आप उस महिला को याद कर रहे हैं जो 40 साल से पहले ही गुजर चुकी हैं, शहीद हो गई देश के लिए 1984 में। आज हम 2023 में हैं, लेकिन आप उनको श्रद्धा के साथ, श्रद्धा पूर्वक, प्रेम के साथ याद कर रहे हैं, और आप अभी भी आशा रख रहे हैं कि उनकी तरह कोई आपकी मदद करे, क्योंकि वो एक ईमानदार नेता थी, अपनी देश के लिए समर्पित थी और आपके भविष्य के लिए समर्पित थी। तो जब आप ऐसा कहते हैं तो मेरे मन में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास होता है कि आपके सामने खड़े होकर मैं ना झूठे वादे कर सकती हूँ, ना झूठी बातें बता सकती हूँ, और आपके सामने जब मैं खड़ी होती हूँ तो ईमानदारी से मैं सच बोलना चाहती हूँ, और मैं यही कहना चाहती हूँ जिसमें आपकी भलाई है। इसीलिए आपने सोनिया अम्मा का नाम भी लिया, और आपको मालूम है कि आपके प्रदेश को बनाने में उनकी भूमिका बहुत रही। मैं उनकी बेटी हूँ। यहाँ अगर आपके सामने खड़ी हूँ तो मैं समझती हूँ कि ये निर्णय उन्होंने पूरी जिम्मेदारी से लिया और वे भी आपके लिए आजीवन समर्पित रही। तो अब आपकी भलाई की बात क्या है? आपकी भलाई की बात यह है कि आप एकदम जागरूक बने। आजकल जैसे राजनीति यहाँ चल रही है पूरे देश में, कि काम कोई नहीं कर रहा है, दूसरों के काम पर अपना नाम डाला जा रहा है। चुनाव के समय आपकी बातों को करने के बजाय दुनिया भर की बातें चल रही हैं। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आपको गुमराह किया जाता है, आपके जज्बातों को उभारा जाता है ताकि आपका वोट मिल जाए, सत्ता मिल जाए, और उसके बाद कोई काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 साल बाद फिर से आपके जज्बातों पर वोट मांगेंगे, अपने काम पर वोट नहीं मांगेंगे, विकास पर वोट नहीं मांगेंगे। ये जो बाय बाय मोदी, बाय बाय केसीआर आपने लिखा है, अगर आप सचमुच बाय बाय चाहते हैं तो अपनी जिम्मेदारी को समझिए। जो पार्टियां आपको बता रही हैं उनको परखिए, पढ़िए, देखिए कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है। आज ये हैदराबाद का यूथ डिक्लेरेशन किया गया, ये आपका सम्मान है कि हम आज ये डिक्लेरेशन कर रहे हैं, और हम सब नेता यहाँ बैठे हुए, सब जो यहाँ मौजूद हैं, इस डिक्लेरेशन के लिए आपके प्रति जवाबदेह बनेंगे। अगर हमारी सरकार बनेगी, 5 साल बाद ये काम नहीं किए गए तो हमें निकाल देना। क्योंकि आज अगर हम सब ये इस मंच में बैठे हैं तो आपने बिठाया है, और इसका एहसास हम सबके दिलों में होना चाहिए। इस यूथ डिक्लेरेशन में ये कहा है हमने कि आंदोलन में शहीदों के परिवारों के लिए एक सदस्य को जरूर सरकारी नौकरी मिलेगी। हम ये भी कह रहे हैं कि शहीदों के माता पिता या उनकी पत्नियां को 25,000 रुपए की मासिक पेंशन दी जाएगी।
2 लाख सरकारी पद जो आज खाली पड़े हैं, इनको 1 साल के अंदर अंदर हम भरना चाहते हैं और इसका पूरा प्रयास करेंगे। जो SC, ST, OBC का बैकलॉग है भर्तियों में, इसको हम पूरा करेंगे। भर्ती के लिए हर साल एक जॉब कैलेंडर बनाया जाएगा। इसमें आपको पता चलेगा कि भर्ती के इम्तिहान कब हैं और इनके रिजल्ट कब आएंगे, ताकि स्कैम्स और घोटाले कम हों। बेरोजगार युवाओं के लिए हर महीने 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता हम कह रहे हैं देंगे। और ये उस तरह का भत्ता नहीं होगा जो आज तक आपने देखा नहीं है, जो KCR जी ने आपको वादा करके बताया था। हम ये निर्णय ले रहे हैं कि आपको मिलेगा और ये हम पूरा प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी अगर सरकार बने तो ये काम शुरू होगा। प्रदेश के 7 जोन्स में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाना चाहते हैं हम, और हर जिले में, जैसे रेवंत जी ने भी आपको बताया, स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाया जाएगा। तेलंगाना में सरकारी सहायता पाने वाली प्राइवेट कंपनीज की भर्तियों में तेलंगाना के युवाओं को 75% आरक्षण मिलेगा। स्पेशल गल्फ सेल बनेगा, जिसमें जो गल्फ के देशों में रोजगार के रास्ते बनते हैं, उनकी सुविधा आपके लिए बनाई जाएगी। शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। इन्होंने शिक्षा की बजट कम की है। आप सोचिए कि किस तरह का भविष्य बनाना चाहते हैं आपके लिए, अगर स्कूल ही नहीं खुलवा रहे हैं, अगर शिक्षा की बजट कम हो रही है। SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज और EWS के जरूरतमंद बच्चों के लिए फीस का रीइंबर्समेंट किया जाएगा। जो 4,000 करोड़ सरकार के ड्यूज हैं वो क्लियर किए जाएंगे। खम्मम, मेडक में नई इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटीज बनाई जाएंगी। शिक्षा प्राप्त कर रही 18 साल से ऊपर की लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटर मिलेगा। हाँ, ये मुझे भी पसंद है, ये वाला। 4 नई IIIT बनाना चाहते हैं हम। वर्ल्ड क्लास की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ये सब काम हम करना चाहते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें इस यूथ के जो आपने ये जो डिसीजंस लिए हैं उसमें लिखे गए हैं। आप सबको पढ़ना चाहिए और सबको अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि अगर आज आपको अपने भविष्य को बचाना है, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाना है, अपने देश को गलत तरह की राजनीति से बचाना है और एक ऐसी राजनीति स्थापित करनी है जिसके लिए जनता सर्वोपरि है, तो आपको जागरूक बनना एकदम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज यही है। आपको जागरूक बनना पड़ेगा। मैं यही मांगने आई हूं आपसे, बार बार आपसे मिलती रहूंगी, बातें करती रहूंगी, और मेरी इच्छा यही है कि जो सपने शहीदों ने, आपकी बहनों, आपके भाइयों ने आपके प्रदेश के लिए देखे, जिन सपनों को साकार करने के लिए सोनिया अम्मा ने और कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया था, और जिस प्रदेश के लिए इंदिरा अम्मा ने दिन रात काम किया था, वो एक विकसित मजबूत प्रदेश बने जो पूरी दुनिया में मशहूर रहे। यही मेरी इच्छा और आशा है। आप सबने बहुत बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुना, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत धन्यवाद देती हूँ। एक बार मेरे साथ कहिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। ఒక్క 2 నిమిషాలు వేచి ఉండవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాం।
మళ్ళీ వస్తుంది, వేదిక మీదకి వస్తుంది. దయచేసి 2 నిమిషాలు ఆగాలి. 2 నిమిషాలు ఓపికతో ఉడోసి కొడతా ఉన్నా. ఎన్ఎస్ఐ యువజన కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు యూత్ డిక్లరేషన్ ను మేడం చేతుల మీదుగా రిలీజ్ చేస్తారు. తరతరాల చరిత గల తల్లి యూత్ కాంగ్రెస్ ఎన్ఐ చేతుల మీదుగా రిలీజ్ చేస్తారు. మేడం ఈస్ కమింగ్. మేడం మళ్ళీ వస్తుంది. 2 నిమిషాలు వేచి ఉండాల్సిందే కోరుతా ఉన్నాం. విద్యార్థి యువజన డిక్లరేషన్ రిలీజ్ చేస్తారు. యువజన కాంగ్రెస్ ఎన్ఎస్ఐ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు, సిటీ అధ్యక్షులు విద్యార్థి యువజన డిక్లరేషన్. నది పురిటి గడ్డ రుద్రమది వీరగడ్డ ఊరూర పాటలైన మీర సాగు వీరగాథ జై తెలంగాణ జై జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ. గట్టిగా 2 చప్పట్లు కొట్టి మేడంకు వీడుకో చెప్పండి గట్టిగా.